Hello students, today I am going to start a new chapter, that is algebraic expression. It is very important while you are solving linear equations and other algebra related questions. So this is algebraic expression means you are expressing algebra. So what is algebra? For that you have to first understand two things. One is variable. What is variable? You express variable using any alphabet like X, Y, Z, A, T, M, or like any alphabet, right? The other term is constant. You use numericals or numbers like 1, 2, 3, 4, 17, 19, or any number to show constant. So in this algebra, we will combine these two, word constant and variable, to express algebraic expression. Suppose this is 3x square y or 7xy by z. These are algebraic expression. You can show simple by number or simple by t. So these all are terms when there is numerical, when is there 3x square y, that means in between the 7 and x it is a multiplication marks. So it is 7 into x into y by z, that means z means division. So whenever there is multiplication or division marks between any alphabet and constant, so it is regarded as one term. So 7x square y by z, although 7 is there, x is there, y is there, z is there, but even then it is for one term. It is one term. Therefore it is called monomial. Let us take another example, 7 plus x or y minus 3. Here, between 7 and x it is plus, and between y and 3 it is minus. So whenever plus and minus are there, these two will be separate term. So this is first term, this is second term, this is first term, this is second term. Whenever there is two terms are there, हम लोग इसको बोलते हैं binomial. इसी तरह से जब तीन टर्म होगा 7x square plus 4x plus 5, say this is plus and this is minus. If you say this is minus 7x square plus 4x minus minus, so this is one term, this is second term and this is third term. अगर तीन टर्म होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल. तो टर्म को हमको बहुत ज्यादा जानना होगा, टर्म को समझना होगा. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. लाइक टर्म और अनलाइक टर्म जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए लाइक टर्म को ही यूज कर सकते हैं. जैसे 7x plus 5x is equals to 12x and 7x plus 5 is equals to 7x plus 5. You cannot add 7x and 5. Why? Because these two are unlike terms and these two are like terms. So what are like terms and what are unlike terms? Let us understand these two. Like term, suppose 7xy, 9xy, 13xy. So in these three, xy, xy and xy, alphabets or variables are same. So whenever variables are same, we call this as like term. And 9x square y and 13xy square, 4xy or 7.
All these are different terms, so we call these as unlike term. We cannot add or subtract unlike terms. For addition and subtraction, it has to be like term. ये दिमाग में रखना है. like term होना जरूरी है, तभी हम लोग उसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं. like term होना जरूरी है. अब हम लोग इसको जानने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये समझना जरूरी है, कोएफिशिएंट हम लोग किसको बोलते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ x in x square, suppose x 3x y square z. अगर हमको x का कोएफिशिएंट पूछेगा तो x को छोड़कर जो होगा वो सारा x का कोएफिशिएंट होगा 3y square z. समझ गए ना. अगर y का कोएफिशिएंट हम लोग पूछे जाएगा y का, तो y को छोड़कर या z का पूछा जाए तो z को छोड़कर बाकी होगा वो 3xy स्क्वायर. ये तुम्हारा z का कोएफिशिएंट होगा. कोएफिशिएंट के बाद एक और टर्म आता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को हमको समझना होगा. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -3x स्क्वायर y. ये वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है यही तुम्हारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है. मान लो -xy, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे -1 इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा. 3/2xy, तो यहाँ 3/2 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा. जो भी नंबर होगा वेरिएबल के आगे वो आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है. एक और टर्म हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है. अगर हम लोग किसी एक्सप्रेशन को हम लोग देखेंगे 3x स्क्वायर y प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर 7 और 5x टू द पावर 9. जो भी वेरिएबल पावर सबसे मैक्सिमम पावर होगा वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है. यहाँ पे 9 तक मैक्सिमम है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 9 होगा. और वैसे केस में क्या होगा जब इसमें दो वेरिएबल हो. जैसे हम लोग ले लेंगे 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5x y टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 3 y टू द पावर 3. ऐसे केस में हम लोग वेरिएबल्स के पावर को ऐड करेंगे. 2 + 2 4, 7 + 1 8 and 3 + 3 6. तो ये तुम्हारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा. आगे हम लोग आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. जैसा कि हम अभी आप लोगों को बताए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक टर्म होना जरूरी है. जैसे 7x + 5y को ऐड करना है 3x + 2y, तो हम लोग x के नीचे x को रखेंगे और y के नीचे y को रख करके ऐड करेंगे. 5 + 2 7y और 7 + 2 10x. ये आपका इनका एडिशन होगा. इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐसे ऐड करेंगे 7x + 3x + 5y + 2y = 10x + 7y. दोनों का आंसर सेम आएगा. और हम लोग मेरा तो आपका सजेशन होगा कि हॉरिजॉन्टल मेथड को ही फॉलो करें, लेकिन एग्जामिनेशंस में या बुक में जो मेथड को आपको करने के लिए बोला जाए आपको उसको फॉलो करना है. सब्ट्रैक्शन में भी सेम. सब्ट्रैक्शन में एक चीज ध्यान रखना है, हम लोगों को इसमें साइन चेंज करना होता है. जैसे ये 8x स्क्वायर प्लस 9y से सब्ट्रैक्ट करना है 3x स्क्वायर माइनस 3y. सब्ट्रैक्शन के समय हम लोग साइन नीचे वाले का चेंज कर देंगे. जैसे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. अब हमको देखना है ये प्लस और इसका साइन चेंज होकर के प्लस हो गया, तो प्लस 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 होगा और 9 + 3 is 12y. साइन विल बी प्लस.
यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। हम लोग इंटीजर्स में पढ़े हैं, प्लस और माइनस माइनस होगा। ये 5x² बड़े के आगे प्लस साइन है तो हम लोग प्लस साइन देते हैं। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, प्लस और माइनस होगा तो हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन जो होगा, ये सब्ट्रैक्शन होगा, साइन होगा लार्जर नंबर का। एक माइनस और प्लस होगा तब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं दो नंबर पे, लार्जर नंबर का हम लोगों का साइन लेना होगा। दोनों में माइनस होगा तो हम लोग ऐड करते हैं, साइन क्या होगा, माइनस। दोनों में अगर प्लस साइन होगा दोनों नंबर पे तो हम लोग ऐड करते हैं, साइन होगा प्लस। इनको आपको याद करना है, इंटीजर्स में आप लोग पढ़े हुए। इस सब्ट्रैक्शन के वो हम लोग अगर इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से हम लोग सब्ट्रैक्शन को करें तो वहां पे क्या है, ये हो गया तुम्हारा 3x² प्लस 4x माइनस 5x² माइनस 3x। तो इनको हम लोग 3x² प्लस 4x माइनस 5x², ये प्लस साइन था ये माइनस हो गया, और ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा 3x। इसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3x² माइनस 5x² माइनस 2x², बड़े के आगे माइनस है तो माइनस कर गया, प्लस 4 प्लस 3 7x, दोनों प्लस था तो प्लस हो गया। तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करेंगे। अब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करते समय हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग को ध्यान देना होगा, जैसे मोनोमियल को 7x को हमको 3x प्लस 5 बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जो साइन है उसको लिखेंगे, फिर इसको सेकंड टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बी 7x प्लस इंटू 3x प्लस 7x इंटू 5, it will be 21x² प्लस 35x। ये आपका इस तरह से मोनोमियल को हम लोग बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिए। जैसे ये हो गया 3x प्लस 2 और 4x प्लस 3, यहां पे हम लोग इसको एक्सप्रेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको हम लोग करेंगे 3x 4x प्लस 3 प्लस 2 और 4x प्लस 3। इसको एक बार पूरे के साथ करेंगे, फिर दूसरे वाले को भी पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 3 4 12x² प्लस 9x प्लस 8x प्लस 6, ये हो जाएगा 12x² प्लस 17x प्लस 6। ये आपका इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ। इसी तरह से बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ भी हर एक टर्म को पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हमको करना होगा। लास्ट हम लोग देखेंगे डिवीजन के केस में हम लोग कैसे डिवीजन को करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। डिवीजन को अगर हम लोग किसी मान लीजिए ये 18x² प्लस 15xy प्लस 21, इसको हमें डिवाइड करना है, मान लीजिए 3xy के साथ। तो हम लोग इस तरह से अगर मोनोमियल के साथ अगर डिवाइड करना है तो सबको अलग अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा 18x² बाय 3xy प्लस 15xy बाय 3xy और प्लस 21xy² बाय 3xy। अब हम लोग नंबर को नंबर से 3 6 18 हम लोग इसमें पढ़े थे एक्सपोनेंट्स में, पावर सेम अगर बेस होगा तो पावर को माइनस करते हैं, ऊपर 2 है नीचे 1 है तो 2 - 1 1, तो x हो जाएगा और y कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो 1 हो जाता है। 3 5 या 15 तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे x 1 - 1 is 0, तो x anything to the power 0 is 1, so ये तुम्हारा x खत्म हो गया, y भी खत्म हो गया, प्लस 7
x खत्म हो गया, y यहाँ पे आएगा। इस तरह से हम लोग मोनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर ये मोनोमियल डिवीजन के केस में बायनोमियल हो गया तो हम लोगों को लॉन्ग टर्म मेथड से ही डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये मान लीजिए 3x + 5 और यहाँ पे 15x² + 18x + 25 इसे डिवाइड करना है तो हमको सबसे पहला काम है जो करना है, फर्स्ट टर्म जो है इसको हमको 0 करना है। ऐसे कैसे होगा, हमको 15x² लाना है। 15x², 3x को हमको ऐसे नंबर से 3x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये फर्स्ट टर्म मेरा 15x² आ जाए। तो 3x को हम लोग 15 लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 15x² आ जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखेंगे 5x, 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 15 और x² प्लस 5 5 जा 25x। इसके नीचे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होता है इसलिए साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये कट हो गया। और 18 माइनस प्लस और माइनस माइनस करना है, 18 से 25 माइनस करेंगे, 25 से 18 तो 7x और बड़े के आगे माइनस है तो माइनस यहाँ पे डालना है और पास वाले को हम लोग नीचे उतारेंगे। इस तरह से हम लोग फर्स्ट टर्म को हटाना है 7x को, तो 7x को तो माइनस यहाँ पे रखेंगे माइनस साइन और 7x को लाने के लिए 7/3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7/3। तो 7/3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 7/3 3 कट हो गया तो 7x बचेगा और ये हमारा -35/3। साइन यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, ये कट हो गया, यहाँ पे 25 और प्लस 35/3, इसको हमको सॉल्व करना है। 25 + 35/3। इस तरह से हम लोग लॉन्ग टर्म मेथड से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीजन को करते हैं। हमें लगता है कि आज के क्लास से आप लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बहुत सारा आइडिया हो गया होगा और इसी हम लोगों को जो हम लोग अभी पढ़े हैं इसको हमको लीनियर इक्वेशन में भी यूज करना होगा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना पड़ेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोगों को क्वेश्चन आता है, इफ वी ऐड 3 to a number, 3 to a number means a number is x, if we add 3 so expression will be x + 3, if we subtract 5 from a number so x - 5 it will be x - 5, right? What will be the quotient of 4x and y, so x will express this x by y, this will be the quotient of x by y. So I think आज का क्लास यूजफुल रहा होगा आप लोगों को। मेरे स्टूडेंट्स इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जिनको इसका आइडिया नहीं है या जो जानना चाहते हैं वो लोग इसको पढ़े समझे और इसको जितना हो सके पार्ट वीडियो को देखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। मुझे लगता है आप लोग इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा।